ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਫਰਨਾਮਾ ਹਕਾਇਤ ਪਹਿਲੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕਾਇਤ ਦੂਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। तो आओ शुरू करिए हकायत दूसरी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज औरंगजेब नूं कहंदे ने कि ऐ औरंगजेब, मैं राजा दलीप की कहानी सुनी है जो अपने पिता के कोल बैठा होया सी। उस राजे के 4 पुत्र सन जिन्हां ने जंग ते मजलिस के सारे काम सीखे हुए सन। उस दे पुत्र जंग विच मस्त शेर वांगू टुट के पैंदे सन। वो पक्के घोड़ सवार अते हत्थां दे फरतीले सन। उन्हां 4 पुत्रां नूं राजे ने अपने कोल बुलाया ते सोने दीआं कुर्सियां ते वक्खो वक्ख बिठाया। फिर राजे ने दौलत वधाउण वाले अपने वजीर नूं पुछया कि इन्हां 4 पुत्रां विचों राजगद्दी दे योग कौन है। जदों बुद्धिवान वजीर ने राजे की गल सुनी तां उसने अपनी पदवी का झंडा उच्चा किया, भाव के जवाब देण लगा। वजीर ने उत्तर दिता है कि राजन, तुसीं आप ही धर्मात्मा, बुद्धिवान ते अकलमंद हो। तुसीं प्रभु की पछाण करन वाले हो ते सुतंत्र दिमाग वाले हो। हे राजन, आप दे सवाल का उत्तर देण दी मेरे विच शक्ति नहीं, क्योंकि आप दे सवाल बारे जो बचन करना है वह इउं है जिवें कुआरी लड़की की जान नूं विन्हणा होवे। हे राजन, जे तुसीं आखो तां मैं उत्तर दियां ते मैं तुहानूं चंगी तरह इस बिरतांत नूं विस्तार नाल विखा दियां। जिस किसी की अकाल पुरख सहायता करता है, संसार विच उस नूं हर काम विच सफलता प्राप्त हुंदी है। हे राजन, सानूं चाहीदा है कि पहलां असीं इन्हां दी सियाणप दी परख करिए, फिर इस तों पिछों इन्हां दे काम दी अजमाइश करिए। राजे ने एक पुत्र नूं 10,000 मस्त हाथी दिते जो सारे ही जंजीरां नाल बद्धे हुए सन। राजे ने दूजे पुत्र नूं 5 लाख घोड़े दिते जिन्हां दीआं काठियां सोने दीआं बणीआं होईआं सन अते जो मौसम बहार वांगू लिशक रहे सन। तीजे पुत्र नूं राजे ने 3 लाख ऊठ दिते जो सारे ही चांदी दे भार नाल लदे हुए सन अते सोने नाल सजाए हुए सन। चौथे पुत्र नूं राजे ने एक मूंगी दा दाणा ते अद्धा छोलिਆਂ ਦਾ दाणा दिता। वो लड़का बड़ा सुतंत्र ख्यालों वाला ते बड़ा अकलमंद सी। वो बुद्धिवान लड़का उन्हां दाणिਆਂ ਨੂੰ घर ले आया। छोलिਆਂ ਦੇ ਅੱਧੇ दाणे ਦੇ बराबर वो एक पूरा छोलिਆਂ ਦਾ दाणा होर ले आया। उस लड़के दलीप ने चाहा कि वो उन्हां दाणਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇ ਤੇ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ बुद्धि ਤੇ किस्मत ਦੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ करे। उस चौथे लड़के दलीप ने वो दोवें बीज धरती ਵਿੱਚ दबा ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਸ ਲਾ ਲਈ। जद उन्हां दाणਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ बीत गए ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਰੁੱਤ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਉੱਗ ਆਏ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੀਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪੱਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ। ਦਲੀਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 10-20 ਵਾਰ ਬੀਜਿਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਲਵਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਲੀਪ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੁਖਦਾਇਕ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਗਦ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ 10,000 ਹਾਥੀ ਖਰੀਦ ਲਏ ਤੇ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗੂ ਉੱਚੇ ਤੇ ਨੀਲੇ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗੂ ਮਸਤ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਘੋੜੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੇ 3 ਲੱਖ ਊਠ ਮੁੱਲ ਲਏ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਲੀਪ ਨੇ ਉਸ ਦਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ। ਦਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਸਾਏ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਮੂੰਗੀ ਪਟਨ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਜੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ 7 ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਕਲਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਕਲਮ ਫੜ ਲਈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਪਦਵੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਦੀਵਿਓ ਤੇ ਯਮਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਰਜੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਭਾਵ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
कि मैं कई घोड़े तो बख्शिश कर दिते सन ते कई मर गए सन। राजे ने तीजे पुत्र ने पुछया कि ऊँट कित्थे हन, मैनू सारे विखा। हे मेरी जान, तू वो कित्थे बख्शिश कीते हन? उसने अगों जवाब दिता, कई ऊँट तां लड़ाई विच काम आ गए सन, भाव मर गए सन ते बहुत सारे ऊँट मैं बख्शिश कीते सन। चौथे पुत्र ने पुछया, हे चंगे भागां वाले, हे छत्र चौर ते राजगद्दी दे योग पुत्र, ये मैनू दस कि जो तैनू मैं एक मूंगी का दाणा ते अद्धा छोलिਆਂ ਦਾ दाणा दिता सी वो कित्थे हन? उस पुत्र ने उत्तर दिता कि जे आप दा हुक्म होवे तां मैं आप अगे सारे हाथी घोड़े बहुत सारे ऊँट लियावां। तद उसने 12,000 हाथी लिया के राजे की भेटा कीते, जो सारे ही सोने ते चांदी नाल मढ़े हुए सन। वो 5 ਲੱਖ घोड़े भी लियाया, वो सोने दियां बेशुमार काठियां भी लियाया, वो लोहे दे टोप, सुनहरी संजोआं, वधिया सुनहरी चुल, बहुत सारे तीर अते बहुत कीमती तलवारां लैके आया। बहुत सारे बगदाद दे ऊँट, सोना, खीनखाब दे कपड़े ते बेशुमार जैकटां लैके आया। वो 10 नील 10 पदम पीले रंग दीयां मोहरां लिया के राजे नूं दित्तियां, जिन्हां नूं वेख के मित्रां दीयां अखां विच ठंड पैंदी सी। एक मूंगी दे दाणे तो एक शहर बनिया, जिस दा नाम मूंगी पटन शहर है। छोलिਆਂ ਦੇ ਅੱਧੇ दाणे की आमदन तो दूसरा शहर वसाया है, जिस दा नाम दिल्ली शहर मशहूर होया। राजे नूं अपने चौथे पुत्र की जुगती बड़ी चंगी लगी। उसने खुश होकर उसनूं दलीप का लकब दिता, भाव उसका नाम राजा दलीप रखिया। उस मर्द तो शहनशाही का प्रताप पैदा होया, जो तख्त अते धरती के लायक है। ऐसे मर्द नूं जड़ाओं, तख्तो ताज, चौर ते मोहरां शोभदियां हन अते उसदी अकल ते जुगती उत्ते 1000 वारी कुर्बान हुंदे हन। वो बाकी दे तिन्ने पुत्र मूर्ख ते गंदे दिमाग वाले सन, जिन्हां दी ना चाल चंगी सी ते ना ही बाणी चंगी सी। राजे ने चाहया कि मैं दलीप नूं राजगद्दी दे दियां ते अपनी दौलत बारे सारे वेरवे इस नूं दस दियां। दलीप राजगद्दी ते बैठ के शोभा वधावेगा, क्योंकि ये बड़ा अकलमंद ते पृथ्वी का मालक है। उसका लकब राजा दलीप हो गया ते राजा उसनूं राजगद्दी दे गया, भाव कि उसनूं राजगद्दी राजे ने बख्श दी। राजे ने बाकी तिन्हां पुत्रां नूं बादशाही तो वखरा कर दिता, क्योंकि वो ना तो अकलमंद सन ते ना ही विकारां तो रहत सन। राजे दलीप नूं सुनहरी संघासन के उत्ते बिठा दिता ते पुराने खजाने दीयां कुंजियां राजे ने खोल के उसके हवाले कर दित्तियां। राजे ने दलीप नूं राजगद्दी दे दी, भाव आप सब बंधनां तो मुक्त हो गया। उसने फकीरां वाली गोदड़ी पहन लई ते जंगल वाल रवाना हो गया। इस हकायत नूं लिख के सतगुरु जी औरंगजेब नूं यह सिक्ख्या दे रहे हैं कि वेख औरंगजेब, राजे ने राजगद्दी देण तो पहलां अपने पुत्रां नूं किवें परखिया। राजा दलीप नूं राजगद्दी दे योग जाण के अपनी गद्दी का वारस बनाया। राजा दलीप ने अपनी हिम्मत ते नेक कमाई नाल 2 शहर वसाए। जिस दिल्ली के तख्त ते इस वेले तू बैठा है, ये उसे राजे दलीप का वसाया शहर है। उसने अपने राज समय धर्म का राज किया ते प्रजा नूं सुखी रखिया, पर तू उस दिल्ली के तख्त ते बैठ के जो जुल्म कर रहा है, उस तो प्रजा दुखी है। तू धोखे नाल अपने पिता नूं कैद करके ते भरावां नूं मरवा के राज प्राप्त किया है। जद तू हेर फेर करके ही राज लिया है, तद तेरे कोल किसी इंसाफ की आस रखनी व्यर्थ है। याद रख, तैनूं सच्चे रब की दरगाह विच इन्हां कुकर्मां दा लेखा देना पैना है। इस हकायत की समाप्ति करन तो पहलां सतगुरु जी अपने गुरदेव अगे अरदास करते हैं कि हे गुरदेव, मैनू हरि दे नाम का प्याला बख्शो, जो मेरे लायक है ते जंग के अंदर मेरे काम आने वाला है। हे प्रभु, मैनू ये दात बख्श ताकि मैं अपने भागां की अजमाइश करां अते अपनी तलवार की कार्रवाई करां। भाव, हे सतगुरु जी, मैनू प्रभु के नाम की दात बख्शो ताकि मैं दृढ़ता नाल जुल्म नूं नाश करन लई अपनी तलवार के जोर विखावां ते तेरी आग्या का पालन करदा होया धर्म का प्रचार करां। वो खालसा जी, इत्थे हकायत दूसरी समाप्त हुंदी है ते अगली वीडियो दे विच आप जी नूं हकायत तीसरी दे दर्शन करावांगे। भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।